Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 6 of class 10th math, that is triangle. Okay. Student, in the last part we had covered some theorems. Okay, some important theorems that in two similar triangles the ratio of the corresponding sides are also proportional to their corresponding perimeter as well as their corresponding medians as well as their corresponding altitudes. Okay. After that, in your book there is one more topic, that is area of two similar triangle, so which is deleted from the new syllabus, which is came from the CBSE. Okay, so it means that after 6.3 you have to switch for 6.5. Okay, between 6.3 and 6.5 there is a exercise, that is 6.4, which is based on the area of similar triangles. So वो हमको नहीं पढ़ना है, हमको उस टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है, Pythagoras theorem. Okay, so our topic for today will be Pythagoras theorem. Okay, and student, this theorem is very important and always comes, always it is the definite question. हमेशा ये आता ही है और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स. ठीक है, इस पाइथागोरस थ्योरम में एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम जो कि एक्चुअल थ्योरम है, और एक उसका कॉन्वर्स है. तो कॉन्वर्स को हटा दिया गया है, केवल हमको पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आएगा ही डेफिनेटली, ये किसी ना किसी सेट में आएगा ही. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज सी द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ओके, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज equal to the sum of the square of the other two sides. Okay, I am going to repeat the statement one more time. In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. We all know, student, you have seen the Pythagoras theorem from class 8 onwards. Okay, आपने 8 में भी देखा है, 9th में भी देखा है, and now you are seeing in the 10th also, but you don't know how to prove the Pythagoras theorem. ठीक है, सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, सो दिस स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव विद द एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके, सो we need to prove the Pythagoras theorem, that is the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides, and here the other two side will be perpendicular and base. Okay, so what we have to prove, first we will write what is given. ठीक है, so it is given that there is a triangle which is a right angle triangle. Okay, so here I am going to draw the right angle triangle. Suppose I am drawing a triangle ABC, which is right angle triangle and right angle at point B. So in given we will write triangle ABC is a right triangle. Triangle ABC is a right angle triangle in which angle B equal to 90 degree. So first you need to write what is given in the statement. So in the statement it is given that there is a triangle which is right angle. So if there is a triangle which is right angle, so one angle should be 90 degree, and in the figure angle B is 90 degree. And we all know that, student, in front of 90 degree whatever side comes, that is known as hypotenuse. Okay, so what we need to prove, we need to prove AC square is equal to, AC will be the hypotenuse, AC square will be equal to the AB square plus BC square. The square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. Hypotenuse is AC and the other two sides is AB and BC, which is known as perpendicular and base. Okay, so this statement we need to prove. So student, for proving the Pythagoras theorem we will do some construction. Okay, what we will do, student, we will draw a perpendicular from the vertex of the right angle triangle. Now first thing come in the mind that what is the vertex of right angle triangle. ठीक है, what is the vertex of right angle triangle? So at which point
whenever the angle is 90 degree is known as the vertex of the right angle triangle. एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बनता है उसी को उसका वर्टेक्स बोलते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज. ओके, सो फ्रॉम बी वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है, सपोज इट इज BD. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, we will do the construction, and in construction what we'll write, we will write BD perpendicular AC. ठीक है, this construction we have done in the figure. What we have done, from the vertex of the right angle triangle, the vertex of the right angle triangle is here is B, and from B we have drawn a perpendicular to the hypotenuse, that is BD. Okay, so BD perpendicular AC. Now we will start our proving. So we will write proof. Whenever you have to prove any theorem, you should write given also, to prove also, and if construction is required, then you have to write the construction also. Okay, अगर construction required नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर required है तो that you have to mention. Okay, what you have done the construction, that is BD perpendicular AC. So now see, when we drawn BD perpendicular AC, this triangle ABC is divided into two right angle triangle. See, one triangle is ADB and the another triangle is BDC. ठीक है, these both triangle will be right angle triangle because angle D is 90 degree ना, so triangle ADB will also be a right angle triangle and triangle BDC will also be a right angle triangle. ठीक है, so now what we will do, student, what we will do, we will make similar to smaller triangle to the whole triangle. मतलब कि हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे. ठीक है, यहाँ पे दो छोटे छोटे ट्रायंगल है, दो छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. मतलब कि दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को अलग अलग बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, स्टूडेंट, सपोज I need to prove triangle ADB and triangle ABC are similar. मुझे क्या करना है, मुझे triangle ADB और triangle ABC को similar दिखाना है. ठीक है, तो what we will do, I will take two triangle, that is triangle ABD and triangle ABC. ठीक है, ABD. यहां पर ट्रायंगल का नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. देखो क्या करना है, मुझे छोटे छोटे एक पहले मैं एक छोटा ट्रायंगल लूंगा, मींस ये वाला ट्रायंगल मान लो मैंने लिया ADB, तो इस छोटे ट्रायंगल को मुझे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है. ठीक है, सो कैसे मैंने नाम लिखा ADB एंड ABC. क्यों नहीं मैंने ABD लिखा, क्यों मैंने ABD इरेज करके ADB लिख दिया, तो उसके पीछे एक रीजन था. देखो जब भी हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें दिखें कि वो सिमिलर है, इक्वल है कि नहीं. अब देखो ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC में दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन है, तो एंगल A यहां भी लिखा, एंगल A यहां भी लिखा, तो मतलब कि A यहां भी लिखा और A यहां भी लिखा. ठीक है, दूसरी बात, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, दैट इज इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज 90 डिग्री एंड इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री. सो बाई डबल ए प्रॉपर्टी दीज टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर. तो जब भी आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर करना हो ना, सिमिलर प्रूव करना हो, तो पहले आप देख लो कि क्या दोनों ट्रायंगल में कोई एंगल इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आपस में. तो अगर मुझे ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए था, तो मुझे उसको सिमिलर दिखाने के लिए कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूव करना पड़ता. तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा, मान लो आपको ट्रायंगल का नाम लिखना नहीं आता, सपोज आपको ट्रायंगल का नाम लिखना नहीं आता, लेकिन आपको ये पता है कि आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है. मुझे एक ये वाला ट्रायंगल लेना था और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेना था और दोनों को सिमिलर दिखाना था. तो मैंने देखा क्या मैं इनको सिमिलर प्रूव कर सकता हूं. तो मैंने देखा कि चेक करते हैं क्या इनके कोई भी दो एंगल इक्वल है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो वो सिमिलर हो जाएगा. ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल में, दैट इज जो भी नाम हो इसका, इस वाले ट्रायंगल का, इसमें भी एंगल A है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है, मतलब कि दोनों में एंगल A कॉमन है, यानी कि दोनों एंगल इक्वल होगा. तो जब नाम लिखोगे आप, तो आप दोनों ट्रायंगल का नाम ऐसे लिख लो, ऐसे और ऐसे. ठीक है, उसके बाद अगर मैंने यहां भी A लिया तो यहां भी A लिया, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में A वाला पार्ट कॉमन था. ठीक है,
अच्छा, अब छोटे वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एडीबी में ये वाला एंगल मतलब कि डी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। डी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल में बी पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है। तो अगर इस ट्रायंगल में आप डी लिखते हो तो यहां पे क्या लिखोगे, बी, ठीक है। अब देखो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या बच गया था, ए डी बी में क्या हमने नहीं लिखा है, ए और डी लिख दिया है, बी नहीं लिखा है तो ए डी बी। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या नहीं लिखा है, सी, सो ए बी सी। तो ट्रायंगल का नाम आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। ट्रायंगल का नाम हमेशा सही लिखते हैं स्टूडेंट, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं। बिकॉज ट्रायंगल के नाम सही लिखोगे तभी आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो मेथड ये था कि हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, बीडी परपेंडिकुलर एसी जैसे ड्रॉ किया, ये बड़ा ट्रायंगल दो राइट एंगल में डिवाइड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल को एट ए टाइम लेना है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, और उन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो पहले मैंने ये छोटा वाला लिया, पहले मैंने ये छोटा वाला लिया और बड़ा वाला लिया। तो छोटे वाले का नाम एडीबी एंड बड़े वाले का नाम एबीसी। अभी बताया मैंने कैसे लिखा है मैंने, ठीक है, वो ले लिया। अब इनको मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो इसका एंगल ए और इसका एंगल ए कॉमन एंगल है, दैट इज कॉमन। इसमें एंगल एडीबी और इसमें एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। So by double A property student, by double A criteria, triangle ADB will be similar to triangle ABC, ठीक है। ADB and ABC are similar, हमने प्रूव कर दिया triangle ADB is similar to triangle ABC. And if these two triangles are similar, then the ratio of the corresponding side will be proportional। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी corresponding side का रेशियो सेम होता है। तो अगर मैं इसका AD लिखता हूं तो इसका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, AB, और इसका अगर मैं AB लिखता हूं तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, BC, ठीक है। देखो इसका AD तो इसका AB और इसका AB तो इसका AC, ठीक है। एक और होगा, एक और साइड होगी, दैट इज BD अपॉन BC। तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमने कुछ ऐसा लिया है जिससे हमें एक साइड का स्क्वायर मिल जाए। मतलब कि हमको क्या प्रूव करना था स्टूडेंट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना। तो मुझे AB स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो मैं क्या किया, AD अपॉन AB ले लिया और AB अपॉन AC ले लिया। अब क्या करोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD इंटू AC will be equal to AB square, ठीक है। AD into AB is equal to AB square, ठीक है। Suppose it is equation number 1। देखो पहले क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया, और अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड को कुछ ऐसे लिखा जिससे हमें एक साइड का स्क्वायर मिल जाए, जो दो साइड थी उनमें से एक साइड का स्क्वायर मिल जाए। तो मैंने क्या किया, AD अपॉन AB एंड AB अपॉन AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब इसी तरह स्टूडेंट, अब मुझे इस छोटे वाले ट्रायंगल को भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, देखो दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल में छोटा वाला ट्रायंगल है ये वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला। तो दोनों ही ट्रायंगल में C वाला पॉइंट कॉमन है, तो इसमें भी C लिख दो, इसमें भी C लिख दो, ठीक है। अच्छा, छोटे वाले ट्रायंगल में D पर 90 डिग्री बन रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में B पर, तो इसमें अगर D लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे, B। अच्छा, छोटे वाले ट्रायंगल में B बच गया है और बड़े वाले ट्रायंगल में A बच गया है, तो यानी कि ये। तो नेमिंग कुछ ऐसे किया। क्यों मैंने ऐसे किया स्टूडेंट, क्योंकि मुझे दोनों ट्रायंगल को, छोटा वाला और बड़े वाले को सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर मैं कैसे दिखाऊंगा, डबल ए से, और मुझे कोई भी दो एंगल इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले ही मैंने वो दो एंगल देख लिया, कौन कौन से एंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में C वाला पॉइंट कॉमन था। तो अगर मैं इसमें भी C ले रहा हूं तो इसमें भी C ले रहा हूं, क्योंकि मुझे दोनों को सिमिलर प्रूव करना है ना। सिमिलर होगा तभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो दोनों ही ट्रायंगल में C वाला पॉइंट कॉमन है, तो इसमें भी C लिखा, इसमें भी C लिखा, ओके। आफ्टर दैट मैंने देखा कि छोटे वाले ट्रायंगल में D वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में B वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है। तो 90-90 इक्वल होगा। तो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में D लिखता हूं तो बड़े वाले ट्रायंगल में B। अच्छा, अब छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट बच गया था, B, तो यहाँ B लिख दिया, और बड़े वाले ट्रायंगल में A बच गया था तो A लिख दिया। अब देखो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल C कॉमन है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, दैट इज कॉमन।
and in this triangle angle CDB is equal to angle CBA, which is 90 degree. So it is also A, it is also A. So by double A criteria, triangle CDB will be similar to triangle CBA. ठीक है. Now if these two triangles will be similar, student, triangle CDB is similar to triangle CBA. ठीक है. तो रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल. सो अगर इसमें मैं CB लेता हूं, CB, अगर मैं इसमें CB लेता हूं स्टूडेंट, ठीक है, CB, तो इसमें क्या लूंगा मैं, व्हाट आई विल टेक स्टूडेंट, आई विल टेक CA. ठीक है. और इसमें अगर मैं CD लेता हूं तो इसमें क्या लूंगा मैं, CB. ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो हम कुछ ऐसा लेंगे कि देखो हमें इस वाले इक्वेशन में AB स्क्वायर मिल गया, अब मुझे दूसरे वाले इक्वेशन में ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे BC स्क्वायर मिल जाए. ठीक है. तो मैंने कैसे लिया, इसमें अगर CD लिया तो इसमें C, इसमें अगर CB लिया तो क्योंकि मुझे CB चाहिए, CB मतलब BC, CB चाहिए तो इसमें क्या हो गया CA, और इसमें मुझे CD तो इसमें CB. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CB इंटू CB विल बी CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA इंटू CD. अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, AC इंटू CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. देखो AC क्यों लिखा मैंने AC, क्योंकि हमने क्वेश्चन में AC प्रूव करना है. CA और AC बराबर ही होंगे, तो AC को मैंने CA को मैंने AC लिख दिया और CD को CD दे दिया एंड CB स्क्वायर को BC स्क्वायर लिख दिया. ठीक है. अच्छा, अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो. इन इक्वेशन नंबर 1 AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड इन द इक्वेशन नंबर 2 AC इंटू CD इज इक्वल टू BC स्क्वायर. तो अब देखो जो प्रूव करना है उसमें हमको क्या चाहिए, हमको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए. तो यानी अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे स्टूडेंट, अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दे हम लोग ऐड, तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है. फिर से मैं बता दे रहा हूं, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स दैट इज B से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज BD. अब क्या किया, दो छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल मिले, तो इन छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल को बड़े राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किया. तो मैंने देखा कि इसको मुझे बड़े के सिमिलर प्रूव करना है, तो मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि कौन कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं दोनों में. तो इस छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A कॉमन था और इसमें एंगल D और इसमें एंगल B 90 डिग्री था, तो डबल A से दोनों सिमिलर हो गए. उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाया. सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC. यहां से इक्वेशन नंबर 1 मिल गया. ऐसे ही सेकंड दो ट्रायंगल लिए, छोटा वाला और बड़ा वाला, छोटा वाले में CDB और बड़े वाले में CBA. दोनों को सिमिलर किया अगेन डबल A से और फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे दिया. अब यहां ये सोचोगे सर आपने CB को BC क्यों कर दिया, क्योंकि प्रूफ में हमें BC चाहिए स्टूडेंट, दैट्स व्हाई CB को मैंने BC कर दिया. ठीक है. सो इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2. Now I am going to erase these part. Okay, ठीक है. I am going to erase these part. I hope you have noted down. Now, what I am going to do, student, from there I am adding equation number 1 plus equation number 2. So when I will add equation number 1 and equation number 2, in the left hand side what will come, AD into AC प्लस इस वाले इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड AD इंटू AC और उसमें क्या है AC इंटू CD विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है. नाउ इन बोथ द टू इक्वेशन AC इज कॉमन, सो व्हेन यू विल टेक AC कॉमन, सो इन द ब्रैकेट AD प्लस CD विल बी लेफ्ट. ठीक है. AD प्लस CD विल बी लेफ्ट एंड हियर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो अब ध्यान दो स्टूडेंट, AC है ये, ठीक है, इनटू ब्रैकेट है ना, तो यहां मल्टीप्लाई का साइन होगा AC इंटू. अब देखो AD प्लस CD, AD प्लस CD क्या है, AD और CD को ऐड करो तो क्या मिलेगा, AC तो मिलेगा. सो AD प्लस CD की जगह क्या हो जाएगा AC एंड दिस विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो AC इंटू AC विल बी AC स्क्वायर एंड दिस विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. प्रूव्ड. यही प्रूव करना था.
ठीक है, नाउ प्रूव। तो सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है और जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताया है आपको वो फॉलो करना है। दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा, विच इज द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड इज परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन इट स्टूडेंट। Now student, a remark from Pythagoras theorem is that हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए उस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो उसी से रिलेटेड थ्योरम है, स्टेटमेंट है, जो भी कह लो। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्रायंगल ऑन बोथ द साइड, ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल बनते हैं वो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर भी होते हैं और एक दूसरे से भी क्या होते हैं, सिमिलर। मतलब कि जब हमने प्रूव किया था तो क्या किया था, दोनों छोटे छोटे वाले ट्रायंगल्स को बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया था ना, तो वही स्टेटमेंट है कि इफ वी ड्रॉ a perpendicular from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then the triangles on both the side of perpendicular, triangles on both the side of the perpendicular means perpendicular is BD, so on the both side of perpendicular BD there are two triangles, so these two triangles will be similar to the whole triangle and will also be similar to each other। ठीक है, हमने प्रूव किया था ना कि ट्रायंगल ADB was similar to triangle ABC and triangle CDB was similar to triangle ABC। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल जो बनते हैं परपेंडिकुलर के दोनों साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं और एक दूसरे से भी सिमिलर होते हैं। अगर आपको प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, तो कैसे प्रूव करते हैं स्टूडेंट? How will you prove it? अगर आपको ये प्रूव करना होता है कि दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ठीक है, तो कैसे प्रूव करते हैं? टेल मी, हाउ विल यू प्रूव इट? देखो कैसे प्रूव करते हैं, पहले हम कुछ एनालाइज करते हैं इसमें। ठीक है, मान लो स्टूडेंट ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मान लो मैंने इसका कोई एक एंगल, इसको मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, इसका मैंने मान लिया एंगल ये वाला थीटा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा स्टूडेंट, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ट्रायंगल बीडीसी में ये वाला एंगल कितना होगा, छोटा वाला? देखो ट्रायंगल बीडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। ये समझ में आ रहा है कैसे? देखो हमने इस एंगल को मान लिया लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। मान लो मैंने लिखा लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा। हमने तो ये प्रूव कर दिया है ना कि छोटे छोटे वाले ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। मान लो हमें ये प्रूव करना होता कि क्या ये दोनों आपस में सिमिलर है कि नहीं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, मान लिया लेट एंगल सी इक्वल टू थीटा, सो एंगल CBD विल बी 90 माइनस थीटा। आप देख लेना 90 माइनस थीटा ही आएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा। ठीक है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो बाकी बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। और आपको पता था ना कि एंगल बी कितना था स्टूडेंट, एंगल बी था 90 डिग्री, तो व्हाट विल बी एंगल ABD। सो एंगल ABD क्या करोगे आप, अगर ये पूरा एंगल कितना है 90 और ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो हम कह सकते हैं ना एंगल ABD विल बी 90 माइनस थीटा। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो एंगल ABD विल कम 90 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा। सो एंगल ABD इज इक्वल टू थीटा। तो ऐसे ही ये थीटा आ गया था ये। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, एंगल B पूरा 90 था और इसमें से ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा था, तो ये एंगल आपको निकालना है। तो अगर आप पूरे एंगल में से ये 90 माइनस थीटा माइनस कर दोगे तो ये थीटा नहीं मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हमको सिमिलर प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है,
तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, तो जनरली हम लोग डबल ए यूज करते हैं। तो पहले देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में क्या कोई दो एंगल आपस में इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट डी वाले पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा है। दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल ADB 90 है और इसमें BDC 90 है। तो मतलब कि एक एंगल 90, एक एंगल 90, मतलब एक एंगल तो इक्वल हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल में एंगल ABD और इस ट्रायंगल में एंगल BCD, ये दोनों भी तो थीटा थीटा है, मतलब कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया। और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो सिमिलर प्रूफ कैसे करेंगे? अब देखो आपको तो पता चल गया ना कि इनके दो एंगल आपस में इक्वल हैं। तो कौन कौन से दो एंगल आपस में इक्वल हैं? तो ध्यान देना, पहले आप दो ट्रायंगल जिनको सिमिलर प्रूव करना है उनका नाम लिखो, ठीक है। अभी आपने सब कुछ एनालाइज किया है, आपको पता भी है किस किस पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री इस डी पे बन रहा था और इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री डी पे बन रहा था। तो अगर मैं इस पहले वाले ट्रायंगल में डी यहां देता हूं तो इस ट्रायंगल में भी डी यहां पर होगा, ठीक है। क्योंकि हमको पहले दो एंगल जो जिस पॉइंट पे इक्वल बन रहे हैं वो दोनों पॉइंट लिख लेंगे और तीसरा वाला पॉइंट जो बचा रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में एंगल डी पर ही 90 डिग्री बन रहा था और इस ट्रायंगल में भी डी पर ही 90 डिग्री बन रहा था। तो अगर सिमिलर प्रूव करना है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। तो इसमें भी डी और इसमें भी डी। अच्छा, अब इस वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बी वाले पॉइंट पर थीटा बन रहा था और इस वाले ट्रायंगल में सी वाले पॉइंट पर थीटा बन रहा था। तो इसमें मैंने बी लिख दिया और इसमें मैंने सी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में हमने डी और बी तो लिख दिया, तो बचा क्या? ए। और इस ट्रायंगल में मैंने डी और सी तो लिख दिया और बचा क्या? बी। तो हो गया नेमिंग, खत्म। क्योंकि दो पॉइंट पहले इसलिए लिख देते हैं, पहले आप दो एंगल देख लो, ठीक है। दो एंगल देख लो कि कौन कौन से दो एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल के। और जब ट्रायंगल का नाम लिखना हो तो पहले दो ट्रायंगल बनाओ और देखो कि कौन कौन से पॉइंट पे एंगल इक्वल थे। तो दोनों ट्रायंगल में डी वाले पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री था, तो डी इसमें भी, डी इसमें भी। दोनों ट्रायंगल में इसमें बी वाले पे थीटा था और इसमें सी वाले पे थीटा था, तो इसमें बी दे दिया, इसमें सी दे दिया। अब छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल में ए बचा था तो ए यहां लिख दिया और इस वाले ट्रायंगल में बी लिखा था तो बी यहां लिख दिया। अब इसको सिमिलर प्रूव करना है तो क्या लिखोगे? एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDB। ये कितने हैं? 90 डिग्री। एंड इस ट्रायंगल में एंगल ABD इज इक्वल टू ABD इज इक्वल टू एंगल BCD। ये कितने थी इनकी वैल्यू? थीटा। तो बाई डबल ए ट्रायंगल DBA किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल DCB के। अब चाहो तो आप, मैंने ऐसा नाम लिखा है ना, बुक में आपको कुछ और ट्रायंगल लिख सकता है। तो अगर आप कोई भी चेंजेस इसमें करोगे तो वही चेंजेस में भी कर लोगे। जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसका ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, ABD। तो देखो मैंने बस रिवर्स कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? BCD। ये ट्रायंगल दोनों, ये दोनों सेम ही है, बस मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। और आपको बताया था मैंने, अगर एक ट्रायंगल में ऑर्डर चेंज करोगे तो दूसरे ट्रायंगल में भी चेंज करोगे वैसे ही। तो हमने प्रूव कर लिया था ट्रायंगल DBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCB। अब मैंने इसको ऑर्डर चेंज कर दिया, ABD इसको लिख दिया, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? BCD। ABD BCD। अब इसी से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर लेना, बहुत यूजफुल होता है ये, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो आप इससे एक आपको रिमार्क पता चल गया कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल और उस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से हम लोग हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल बनते हैं वो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं और वो दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होते हैं। दोनों ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम में देख लिया था। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कैसे होंगे वो मैंने यहां करा दिया है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपस में सिमिलर कब होंगे, तो आपस में सिमिलर आप इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है।
मतलब कि कहने का मतलब है ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे आपस में, और छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के भी क्या होगा, सिमिलर। ओके, सो इतना ही थ्योरम है। अब बचे हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। सो क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। आई थिंक 1 या 2 पार्ट और लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आप लगाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा आप, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो आते हैं एग्जाम में, दैट आई विल टेल यू, एंड रिमेनिंग थिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पढ़ोगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम भी आपको आता है तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बिकॉज इट विल कम आइदर ऑफ 4 मार्क्स और 5 मार्क्स। और जो इस बार का पैटर्न है, 4 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का ही है। सो दिस क्वेश्चन कैन कम इन 5 मार्क्स। ओके, सो whatever things I have taught you today, especially Pythagoras theorem and this statement, please practice it again and again, ठीक है। स्टेटमेंट सिंपल सा ही है, सबको पता था, बस प्रूव करने आना चाहिए। छोटे को बड़े के, दोनों छोटे ट्रायंगल्स को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर देंगे, और सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगा। उसके साथ ही साथ जो छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं वो दोनों आपस में सिमिलर कैसे होंगे, तो उनको भी मैंने अभी बताया है आपको, तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना। 4-5 क्वेश्चन और आपको बताएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए इस टॉपिक पे, और आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, सो रिमेनिंग थिंग स्टूडेंट्स we will discuss in the next part of the video. So till then, have a nice day, take care, thank you.